वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 3 जुलाई। 3 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू बनते हैं आज सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीएसटी काउंसिल। पहली स्टेटमेंट है, द काउंसिल हैज बीन मेड अंडर द आर्टिकल 246। पीएम इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। थर्ड स्टेटमेंट है, एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल शैल बी टेकन एट ए मीटिंग by a majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting। पहली स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन है 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, या ऑल ऑफ द स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर है 3 only, क्योंकि काउंसिल हैज बीन मेड 249A के अंडर आता है और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर काउंसिल का चेयरमैन होता है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल is chaired by the Union Finance Minister and other member of the Union State Minister of Revenue or Finance and Ministers in charge of finance or taxation of all the states। थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द फॉलोइंग assertion and reason। Assertion A, black hole's surface area can't be decreased like the second thermodynamics law। Reason R, the black hole area theorem works on the similar thermodynamic principle that entropy cannot decrease over the time। पहला ऑप्शन है, both A and B are true and R is the correct explanation of A। दूसरा ऑप्शन है, both B and R are true but R is not correct explanation of A। A is true but R is false। डी ऑप्शन है, A is false but R is true। इसकी राइट स्टेटमेंट है, राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का A। हम दूसरी ओर, the black hole area theorem works on the similar thermodynamic principle that entropy cannot decrease over time। It is consistently increases। The researchers used the data from gravitational waves released as a result of two small black holes merging into one। The observation upholds the area law that states that the size of black hole does not decrease over the time। यहाँ क्या बताया था, increase over the time। यहाँ पे लिखा है does not increase over time। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement about Sputnik V vaccine is correct। Sputnik V वैक्सीन के बारे में बात करें। It uses a single vector instead of 2 vectors used in Covishield। It has been developed by Gamaleya Institute of Russia। कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओनली 2। डिस्क्रिप्शन में देखें। द स्पुतनिक वैक्सीन डेवलप्ड बाय गमालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन मॉस्को, नॉट इन रशिया। मॉस्को रशिया, रशिया में ही मॉस्को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the FAO's report on indigenous people food system, consider the following statement। The report studied 8 indigenous people food system in Amazon, Sahel, Himalayas, Pacific Islands and the Arctic।
ACC to the report, these sophisticated food systems are flourishing because of fewer interruptions due to COVID lockdowns. Indigenous people food system are among the most sustainable in the world in terms of efficiency, no waste, seasonality, the reciprocity. कौन सी स्टेटमेंट सही है? Only 1 and 2, only 2 and 3, 1 and 3, or all of the above. क्वेश्चन नंबर 4 का सी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है. नेक्स्ट पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूट्रॉन स्टार्स. अब अगेन scientists measure the mass of neutron stars using the Shapiro delay phenomenon. The space around the star is warped. थर्ड स्टेटमेंट है न्यूट्रॉन स्टार्स आर वेरी डेंस. फोर्थ स्टेटमेंट है दे आर वन ऑफ द पॉसिबल एवोल्यूशनरी एंड पॉइंट ऑफ हाई मास स्टार्स. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Consider the following statement regarding the Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme. State Bank of India (SBI) is the nodal bank for its implementation. It will be implemented over a period of 5 years from 2020 to 2021 to 2024-25. It is a central sector scheme. Under it, NAFED and TRIFED will give the marketing and branding support for 10 products each. बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 only, B have 1, 2 and 3, C have 2 and 4, या all of the above. क्वेश्चन नंबर 6, जी हाँ इसकी 2 and 4 स्टेटमेंट सही है. 1 and 2 को देख लेते हैं. 1 and 3 को देख लेते हैं. द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ना कि SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द नोडल बैंक. और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सराल संचार पोर्टल. पहली स्टेटमेंट है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. किसकी बात कर रहे हैं हम? सरल संचार पोर्टल की. इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दूसरी स्टेटमेंट है इट इज फॉर इशूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसेंस and registration certificates. Third statement है it would boost the ecosystem of design and applications in wireless technologies. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 7 की जी हम 2 and 3. अब हम 1 and 4 को स्टेटमेंट नंबर 1 को देख लेते हैं. इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वेरियस डिजिटल इनिशिएटिव बीइंग undertaken by the Department of Telecommunication, Ministry of Communications, Government of India. यहाँ पे क्या लिखा था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विद रेफरेंस टू द UN रिपोर्ट ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट है द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय UNCTAD एंड UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. Second statement है the stagnation in tourism would result in losses of $2.4 trillion. The tourism sector's recovery will largely depend
on the uptake of COVID-19 vaccines globally. Fourth statement है developing countries suffered the largest reductions in tourist arrival in 2020. कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 8 की? जी हाँ, all the statements are correct. Question number 9. With reference to the enforcing contracts portal, consider the following statement. किसकी बात कर रहे हैं हम? Enforcing contracts portal. ध्यान में रखिएगा. Ministry of Commerce and Industry has launched this portal. Ministry of Commerce and Industry ने ये portal launch किया है. क्या? It aims for promoting ease of doing business. It will provide access to the repository of commercial laws. Sorry. In the Doing Business Report 2020, India has achieved 43rd position. कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 9 की? Only 2 and 3. C is the right answer. अब देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज लॉन्च्ड एन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. अब देख लेते हैं हम फोर्थ स्टेटमेंट क्या है. भारती portal has been launched to ensure that India's ranking in the enforcing contracts indicator comes within the top 50. ना कि 43rd में, top 50 में आती है इंडिया. Consider the following statements. Black carbon is the complex mixture of particulate matter resulting from incomplete combustion. Second statement है black carbon is a long-lived climate pollutant with a lifetime of at least 100 years. पहला ऑप्शन है only one, दूसरा ऑप्शन only two, तीसरा ऑप्शन both 1 and 2 या none of the above. जहाँ इसकी पहली स्टेटमेंट ही सही है. चलिए दूसरी स्टेटमेंट को देख लेते हैं. द ब्लैक कार्बन इज पार्ट ऑफ फाइन पार्टिकल एयर पोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट PMI? पहली स्टेटमेंट है स्कोर अबव 50 इंडिकेट एक्सपेंशन इन बिजनेस एक्टिविटी. PMI कवर्स ओनली द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. कौन सी स्टेटमेंट सही है? ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? जी हाँ, इसका भी आंसर है ओनली वन. यहाँ पे 2 क्या? PMI कवर्स द ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. इट इज राइट आंसर है. इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली for the manufacturing and services sector, and then a composite index is constructed. A figure above 50 denotes expansion in business activity. Anything below 50 denotes contraction. Next question पे चलते हैं. Consider the following statement regarding gamma ray burst explosion. Gamma ray burst explosion. Gamma ray burst are long-lived bursts of gamma ray light, lasts at least hour long. GRBs shine. Second statement है GRBs shine hundreds of times brighter than a typical supernova and about a million trillion times as bright as the sun. कौन सी स्टेटमेंट सही है क्वेश्चन नंबर 12 की? ओनली 2. बी इज द राइट आंसर. चलिए पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं. गामा रेज बर्स्ट आर शॉर्ट लिव्ड बर्स्ट ऑफ गामा रे लाइट. द मोस्ट एनर्जेटिक form of light
through to be generated during the formation of black holes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Consider the following statement regarding the Attorney General of India. पहली स्टेटमेंट है, ही इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ही अपेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in all cases in the Supreme Court or in any case in any high court in which the GOI is concerned. Third statement है, to be appointed as Attorney General, the person must have qualification for the post of High Court Judge. कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? वन इन थ्री. चलिए पहली स्टेटमेंट को देख लेते हैं. द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज द सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इज प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IGNCA is are correct? It is an autonomous institute under Min of Culture. It was estimated by P.T. Jawaharlal Nehru in 1955. कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? क्वेश्चन नंबर 14 की. ओनली वन. यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू दिए है. इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स was established in 1987 as an autonomous institute for under Ministry of Culture as a center for research, academic pursuit and dissemination in the field of the arts. Question number 15. Which of the following statement about COVID-19 vaccine which of the following statement about COVID-19 vaccination is are correct? पहली स्टेटमेंट है, वैक्सीन आर टेस्टेड फॉर देयर immunogenicity. There are currently no vaccine based on DNA. Plasmid is part of DNA. क्या ये स्टेटमेंट सही है? Plasmid is part of DNA. चलिए आंसर देखते हैं. 1 and 2 only, 1 and 3 only, 3 only या 2 only? 1 and 3 only. B is the right answer. चलिए देख लेते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है. जाइडस ना कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मलेरिया इज आर करेक्ट? मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मेल एनोफिल्स मॉस्किटो. माफ़ कीजिएगा, ये साइंटिफिक वर्ड थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं इंडियन पॉलिटी का स्टूडेंट हूँ, स्कॉलर रहा हूँ, तो इसलिए साइंटिफिक वर्ड थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फॉर ए कंट्री टू गेट मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट फ्रॉम WHO, it has demonstrated no cases of malaria in past 3 years. थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया हैज करंटली अप्लाइड फॉर मलेरिया फ्री वैक्स सर्टिफिकेट. कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 16 की. 1 only, 1 and 3 only, 1 and 2 only या 2 only? जी हाँ, डी इज द राइट आंसर. चलिए एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय फीमेल मॉस्किटोज, नॉट मेल मॉस्किटोज. वहाँ पे दिया हुआ था मेल मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटोज ऑफ द जेनस एनोफिल्स. एक बार देख लेते हैं. मेल एनोफिल्स लिखा हुआ है, मेल एनोफिल्स मॉस्किटो, न यहाँ पे है फीमेल मॉस्किटोज एनोफिल. सेकंड स्टेटमेंट क्या थी?
सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? इंडिया हैज़ नॉट अप्लाइड फॉर मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट। यहाँ लिखा इंडिया हैज़ अप्लाइड फॉर मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ बिल्ड अंडर नेट्रिप नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D infrastructure project of the heavy industries ministry. It is also the world's first high speed test track. दोनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? Only one, B, only two, both one and two, या none of the above. Question number 17. Only one statement. Question A is the right answer. चलिए देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? It is also the world's fifth high speed test track. यहाँ पे क्या हुआ है? World's fifth high speed test track. It is built under NATREP testing and rural development infrastructure project of the heavy industries ministry. Which of the following explains a heat dome? पहला ऑप्शन है when the atmosphere traps hot land air, when the atmosphere traps hot ocean air, sun getting too close to earth causing high temperature. D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए, सॉरी बी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है when the atmosphere trap hot ocean air. What is Indrajal? Question number 19. What is Indrajal? Cyber surveillance system, wide area autonomous drone defense system, dome, new naval fleet of India, latest IT infrastructure for GST. इसका राइट आंसर क्या है? ये बार बार पहले भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, तो सीधी सी बात है कि इसी के बारे में, डोम के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ? अब आया जी हमारा क्वेश्चन, हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू द लॉ। बी ऑप्शन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सी ऑप्शन है डिफरेंट लॉज फॉर डिफरेंट पीपल। डी ऑप्शन है नो आर्बिट्रेरी अरेस्ट। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आइए डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। ऑल पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल टू द लॉ. It is clear, known and enforced. The court system is independent and resolves disputes in a fair and public manner. All persons are presumed innocent until proven otherwise by a court. No person shall be arbitrarily arrested, imprisoned, or deprived of their property. Punishment must be determined by a court and be proportionate to the offense. सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज बहुत हो गए, 20 ऑब्जेक्ट MCQs हमने आज डिस्कस किए एक ही वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, माफ़ कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।